Now the allotropes of sulfur. Allotropes of sulfur. Sulfur has three allotropes: rhombic sulfur, monoclinic sulfur, and plastic sulfur. Rhombic sulfur is also called alpha sulfur. Monoclinic sulfur is also called beta sulfur, and plastic sulfur is gamma sulfur. Rhombic sulfur, the most stable form at room temperature. Okay, or it is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Bright yellow in color. It exists as S8 form यानी W यानी crown shape में puckered ring structure. Same monoclinic sulfur, it is stable above 369 Kelvin or soluble in carbon disulfide. CS2 means carbon disulfide. Dull yellow in color. It also exists in as S8 form. Third, plastic sulfur. It is an amorphous form or it is insoluble in CS2. Several other modifications of sulfur containing 6 to 20 sulfur per ring have been synthesized in the last 2 decades. तो इन साइक्लो S6 जो जैसे चेयर फॉर्म होती है, द रिंग अडॉप्ट द चेयर फॉर्म. तो आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा सकता है रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में. तो आपको जो है 3 और 4 पॉइंट्स जो है इसके ध्यान में रहने चाहिए कि हमने किस तरीके से इसको करना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2. इट इज प्रिपेयर्ड बाय sulfur dioxide, sulfur dioxide. It is prepared by the sulfur plus oxygen. It gives SO2, but in laboratory, in lab, it is prepared by sodium sulfide Na2SO3. Sodium sulfide. Okay. Sodium sulfide reacts with sulfuric acid. It gives SO2, sulfur dioxide plus sodium sulfate Na2SO4 plus water. ठीक है. तो लैब में इसको जो है सोडियम सल्फाइड से प्रिपेयर करते हैं और इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज it is prepared by iron sulfide FeS plus oxygen. यानी it is called iron pyrides. Iron pyrides. It gives Fe2O3 plus sulfur dioxide gas. ठीक है. और it is also prepared by zinc sulfide. Zinc sulfide is the ore of zinc blende. It is called zinc blende. और chemical name is zinc sulfide. Zinc sulfide. It gives zinc oxide, sulfur dioxide. Okay, so these are the preparation of sulfur dioxide. Now the properties. Colorless toxic gas. Colorless toxic gas with pungent and suffocating odor. With a pungent and suffocating. Suffocating odor. It is acidic in nature. It is readily soluble in water. It is readily soluble in water, acidic in nature. Sulfur is non-metal, the oxides are non-metals are acidic in nature. So it is acidic character show करती है, यानी acidic in nature. SO2 plus water, it gives sulfurous acid. और if it is acidic in nature, it reacts with base. Base के साथ भी reaction कर जाएगी, तो क्या देगा इसमें? It is Na2SO3 means salt formation हो जाएगी plus H2O. Next, it reacts with chlorine. It is a very important reaction. It combines with chlorine in the presence of charcoal.
It gives sulfuryl chloride, SO2Cl2. Sulfuryl क्लोराइड। रिएक्शन को अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में आई भी हुई है एक बार। तो सल्फ्यूरल क्लोराइड हो गया। इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ना, रिड्यूसिंग करेक्टर शो करती है, तो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन कौन सी किस टाइप से रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को शो करती है, अब उस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि करके। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में इसकी आ जाएगा कि मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, मॉइस्ट SO2 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका आपको एग्जांपल देते हैं। इसकी रिएक्शन आपने कराई कि फॉर एग्जांपल इट कन्वर्ट्स आयरन यानी Fe+2 फेरस को किस में कन्वर्ट कर देती है, फेरिक में। तो Fe+2 इसमें Fe+3 में, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हो गई। तो Fe+2 प्लस SO2, the presence of moisture means water, it gives Fe+3 और सल्फेट आयन आपके आ जाएंगे प्लस H आयन। क्लियर। तो फेरिस किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक में। नेक्स्ट इट decolorizes acidified KMnO4, acidified पोटेशियम परमैंगनेट मीन्स KMnO4। KMnO4 जो है कलर्ड होता है, तो KMnO4 को क्या करेगी, कलरलेस। तो SO2 प्लस H2O, क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में, प्लस टेक MnO4, इट गिव्स SO4 प्लस Mn आयन प्लस H आयन। तो ये रिएक्शन दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में रिएक्शन कंप्लीट करने को भी आ सकती है, सिंपल पूछा जाता है। इट डिकलराइज यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो कर रही है। इट डिकलराइज सल्फर डाइऑक्साइड, ये सॉरी, इट डिकलराइज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को डिकलराइज कर दिया। फेरस को किस में कन्वर्ट कर देती है, फेरिक में कन्वर्ट कर देती है। नाउ द यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो इट इज़ यूज for the manufacture of important chemicals such as sulfuric acid. It is used in manufacture of important compounds like sulfuric acid, H2SO4 हो गया, और सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, NaHSO3, ठीक है ना, कैल्शियम बाइसल्फाइड हो गया, एटसेट्रा। एंड सेकेंड, it is used as disinfectant, disinfectant क्या होते हैं, जो जर्म्स को खत्म करते हैं ना, disinfectant। और it is also used in refining of sugar, it is used for refining ऑफ शुगर। क्लियर। तो दो तीन जो भी यूजेस हैं आपने साथ साथ इसको भी लर्न करने हैं। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमने सल्फ्यूरिक एसिड लेना है इसका। तो सल्फ्यूरिक एसिड में इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है, क्योंकि लार्ज वेराइटी ऑफ यूजेस हैं इसके केमिकल। इस बार जो है इसकी प्रिपरेशन वाला पोर्शन जो है डिलीट हो गया, मतलब उतना प्रिपरेशन जो था इसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो नहीं है अभी, बट वो भी सिंपल प्रोसेस ही था। मतलब प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे अब। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
है ना। तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, कलरलेस होता है। जो प्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म कैसी होगी इसकी, कलरलेस। प्योर जो है वो कलरलेस है। और डेंस लिक्विड है, इसमें लिक्विड तो है ही, डेंस विस्कस लिक्विड, ठीक है। सेकेंड, वाटर के साथ क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, नेचुरल बात है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे इसके ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। साथ में और क्या इसके अंदर आता है कि डिसोसिएशन, इसका अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की हम सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं, इट मीन्स एसिडिक करेक्टर तो है ही इसका। तो एसिडिक करेक्टर की अगर हम बात करें तो एसिडिक करेक्टर, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में है ना, डाइबेसिक एसिड में आयनाइज हो जाता है इन एक्वा सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल H2SO4, अब देखो एक्वस फॉर्म में लेके चल रहे हैं ना, एक्वस, तो इट गिव्स H आयन प्लस बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इजीली जो है डिसोसिएट हो गया Ka1, मतलब K1 मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे लेके चलते हैं। नेक्स्ट HSO4, ये बाइसल्फाइड जो बना हुआ है, अगेन क्या हो जाएगा, फिर से क्या देगा ये, यहाँ आ जाएगा H पॉजिटिव प्लस SO4 -2, ठीक है। यह आ जाएगा Ka2। तब डिसोसिएशन को दिखा रखा है, तो लार्जर वैल्यू ऑफ K1 और K2 मीन्स उतनी ज़्यादा जो है डिसोसिएट हो रहा है ये। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट means Ka, the stronger is the acid, यानी कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा आएगा, जितनी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग कैसा होगा, वो एसिड होगा। नाउ द सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, it act as dehydrating agent, मीन्स मॉइस्चर को रिमूव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखो C12H22O11, आपने शुगर चीनी ले ली, अगर आप शुगर को हीट करते हो ब्लैक हो जाती है, बट अगर आप शुगर के अंदर जो है बिना हीट किए वी ऐड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तब भी क्या होगा, सेम वही होगा प्रोडक्ट, CH2O प्लस कार्बन। कार्बन जो है बिल्कुल जार्मिंग जैसे ब्लैक हो जाता है ना जलने के बाद, ऐसा इस टाइप का हो जाएगा। दूसरा और एग्जांपल ले सकते हो, सपोज वी टेक इट्स सुक्रोज, सुक्रोज मतलब टेबल शुगर चीनी, और यू टेक फॉर्मिक एसिड, और इसमें ऐड किया कंसनट्रेट H2SO4, गिव CO प्लस H2O, यानी मॉइस्चर कैसा हो जाएगा, वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है डिहाइड्रेटिंग नेचर। नाउ द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हॉट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड act as strong oxidizing agent, H2SO4 gives H2O plus SO2 plus nascent oxygen atom, ठीक है, this is a nascent oxygen atom। अब it oxidizes carbon to carbonic acid, sorry, carbon to carbon dioxide, यानी H2SO4 प्लस कार्बन, इट गिव्स H2 और SO2 तो बनेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन को किस में कन्वर्ट करेगा, CO2 में, तो मीन्स CO2 प्लस H2O प्लस SO2। नेक्स्ट इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर,
सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, इट मीन्स H2SO4 प्लस सल्फर गिव्स SO2 प्लस H2O। सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में बनेगा, ऑलरेडी सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, इट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड और क्या आ जाएगा, वाटर। थर्ड, इट ऑक्सीडाइजेस कॉपर, कॉपर को आप लेके चलते हो तो कॉपर सल्फेट में हो जाएगा, तो H2SO4 प्लस Cu gives CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, तो ये इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को है, फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोरिक एसिड में। सपोज वी टेक इट ऑक्सीडाइजेस phosphorus to phosphoric acid H3PO4. H3PO4 is phosphoric acid. Phosphoric acid means H2SO4 plus P4 gives H3PO4 plus SO2 plus H2O। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि एक लार्ज इसमें जो है वैरायटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है इसके इंडस्ट्रियल में, इसके इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस में कैसे हैं, फर्स्ट अभी आप पढ़ ही रहे हो, इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, मेटलर्जी प्रोसेस में यूज़ होता है, और इसके बहुत सारे जो है प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है इसको। तो एक एक करके कुछ प्रॉपर इसके यूजेस जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द यूजेस इसके सल्फ्यूरिक एसिड के, तो कहाँ इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री उनमें यूज़ हो गया, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, तो ऑल्सो यूज़ इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और कहाँ इसका यूज़ करते हैं, और लेबोरेटरी रिएजेंट तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, और इट इज़ यूज इन मेटलर्जी, मेटलर्जी हो गया, और एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और it is also used for storage battery। it is used for storage battery, storage batteries। these are the some important uses of sulfuric acid। तो यहाँ तक आपका 16th ग्रुप जो है कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ साथ आपने एक बार ऑक्सो एसिड्स को पढ़ लेना, जितने भी ऑक्सो एसिड्स में हैं उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह वो एक बार आप देख लेना। तो नेक्स्ट उसमें जो है 17 ग्रुप स्टार्ट करेंगे।